Good morning student. I am going to teach you today nutrition in amoeba. In previous classes we have studied about the mode of nutrition in organism. There is so many mode of nutrition. These are the saprophytic, parasitic and holozoic type of nutrition. Here in nutrition in amoeba, it is the holozoic type of nutrition. Firstly, you see amoeba is a holozoic organism. It means, what is meaning of holozoic? Holozoic means that organism take food in the solid form by the specialized organs like hand, like cilia, like pseudopodia. So here we will discuss about the amoeba. In this amoeba, they take food by the specialized organ which are known as pseudopodia. Pseudopodia is finger-like projection in their body when they want to capture the food. So it is the nutrition in amoeba. अमीबा एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है. इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो अपने फूड को स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से लेते हैं और इन द सॉलिड फॉर्म. फॉर एग्जांपल, इन ह्यूमन बीइंग दे यूज्ड हैंड बाय टेकिंग द फूड. In amoeba they use pseudopodia, which is the finger like projection which are formed in their body, and paramecium they use the spore. So many animals which categorized in the holozoic organism. It is the unicellular. This amoeba is unicellular organism. It means its body is made up of only one cell. In one cell there is cup-like structure are formed or finger-like structure are formed which are known as pseudopodia for taking the food. This process of food capturing in the amoeba, this process is known as phagocytosis. Phagocytosis, जब अमीबा इन फूड को सॉलिड फॉर्म में कैप्चर करता है तो इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं. व्हेन इट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर देन इट इज कॉल्ड द पिनोसाइटोसिस. हियर नॉट इज डिस्क्राइब. इन फर्दर वी विल डिस्क्राइब दिस. हियर ओनली डिस्क्राइब अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा. फर्स्टली ऑल ऑफ यू should know about the amoeba. In amoeba no any specialized organs are formed, but for taking the food specialized organs are formed which are known as pseudopodia. Here so many stages of nutrition is present in amoeba. First is ingestion, second is digestion, third is absorption and assimilation, and fourth is egestion. First, ingestion, it means taking of food inside the body. Food को अंदर लेना, it is the process of ingestion by specialized organs. Then digestion, when food is taken into the body, then this complex food digested into the smallest food. Digested means this complex food change into the simple food. It means in amoeba जो complex food लेते हैं, जो बड़े बड़े फॉर्म के फूड लेते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स के बने हुए फूड हैं, उनको ये एंजाइम की हेल्प से इनको ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है. इट इज नोन एज द डाइजेशन. आफ्टर दिस एब्जॉर्प्शन, जब ये फूड पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, देन इट इज द एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म. एंड एसिमिलेशन, व्हेन इट इज एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म, देन इट इज द मिक्स विद द साइटोप्लाज्म. दिस प्रोसेस इज नोन एज द एसिमिलेशन. बाय द एसिमिलेशन प्रोसेस द फूड इज involved in the growth, in the energy production, in the development. So
it is called the assimilation. After this, next point is egestion. Egestion, when the undigested food is present in the body, it is going off towards the outside of the body. This process is known as the egestion. By the figure, it is described here. Firstly, you can see it is the amoeba, which is the unicellular organism, consists of nucleus. Here plasma membrane also present and so many organelles are also present, but here only I see holozoic nutrition type in digestion. So we describe only some simple figure of the amoeba. अमीबा में ये फूड पार्टिकल्स जैसे ही इनके पास आते हैं, इनकी बॉडी से ये कप लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनना शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इट इज नोन एज द स्यूडोपोडिया. और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में इट कैप्चर द फूड पार्टिकल्स. फिर ये फूड पार्टिकल्स अंदर पहुंचते हैं. देन ये फूड पार्टिकल जब इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आ जाते हैं, तो ये मेम्ब्रेन इज सराउंडेड दिस. जो वो फूड पार्टिकल्स अंदर आते हैं तो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन उनके साइटोप्लाज्म से फॉर्म्ड होता है और उनको सराउंड कर लेता है. इट इज नोन एज फूड वैक्यूल. इट इज नोन एज फूड वैक्यूल. व्हेन फूड वैक्यूल फिर जब अंदर आ जाता है, आने के बाद इनके साइटोप्लाज्म में so many digestive enzymes are present which digest the food molecules. Digest the food molecules, it means जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स के हैं उनको ये क्या करता है, सिंपल फॉर्म में कर देता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. दिस डाइजेस्टिव एंजाइम करते क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद फिर इस साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं. आफ्टर एब्जॉर्प्शन these food particles mix with the cytoplasm and this mixing is called the assimilation. By the mixing of the food particles, they get the energy and the formation of the body is formed. ये जो एसिमिलेशन होता है, जब फूड अंदर आ जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन के बाद उस फूड का होता क्या है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फिर ये जो है एब्जॉर्ब होते हैं. एब्जॉर्ब होने के बाद इन फूड पार्टिकल से इनको एनर्जी मिलती है और इनके बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं. जितने भी वाइटल एक्टिविटी होती है या मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, सारे जो है इन फूड पार्टिकल से होती है. ये फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर इनके सरफेस पे आता है और सरफेस पे आने के बाद फिर ये बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं. इन्हें हम कहते हैं इजेशन प्रोसेस. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द अमीबा इन द न्यूट्रिशन. ये 4 टाइप के स्टेज हैं या प्रोसेस हैं विच आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ द अमीबा. अगेन इसको हम रिपीट कर सकते हैं. जैसे पहला पॉइंट है इंजेशन. फूड को बॉडी के अंदर लेना, इट इज नोन एज इंजेशन. देन डाइजेशन. डाइजेशन है कि जब हम फूड को ले लिए, यहाँ अमीबा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अमीबा फूड को कैसे लेते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विच आर नोन एज द स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया की सहायता से फूड पार्टिकल्स को ये अंदर लेते हैं और ये जब फूड पार्टिकल्स यहाँ आते हैं सरफेस के, तो ये जो है यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है सरफेस और फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाते हैं. व्हेन फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाते हैं, देन ये चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन बनता है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल. और उसके बाद यह फूड वैक्यूल फिर क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जिसे हम डाइजेशन प्रोसेस करते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्हें डाइजेस्ट करते हैं. डाइजेशन का मतलब है
कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फिर ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, इन्हें हम डाइजेशन कहते हैं। आफ्टर द डाइजेशन इट इज एब्जॉर्ब्ड, फिर ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट विद इन द सेल। अब ये साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर जो एब्जॉर्प्शन होता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन फूड पार्टिकल्स का ये करता क्या है, तो ये फूड पार्टिकल्स एसिमिलेटेड होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म के साथ मिक्सिंग हो जाती है। और ये होता क्यों है मिक्सिंग, ये जिससे इनको एनर्जी मिले और इनके बॉडी का कंस्ट्रक्शन हो, जिसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। फूड इन्हें इसीलिए रिक्वायर होता है क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए, इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, तो इसलिए फूड जरूरी होता है। सो आफ्टर एसिमिलेशन दे गेट द एनर्जी एंड इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इनकी बॉडी की होती है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो इनमें अनडाइजेस्ट होते हैं, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा, ये बाहर की तरफ निकल आते हैं और इन्हें हम इस प्रोसेस को फिर एजेशन कहते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे प्लांट में होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट।